Hello everyone, welcome to the YouTube channel Eternal Sunshine. So today we are going to learn the standard 12th, chapter number 1, OCM Business Studies, chapter number 1, Nature and Significance of Management. So firstly, you all know that for a routine life, we can all do the management schedule. We will prepare the schedule. So here we can firstly see what will you learn in this chapter. Recall, we can see. So here the introduction, meaning of management, nature of management, importance of management, management as a science, art and profession. Then after we can see the levels, top level, middle level and bottom level. Then after we can see the functions like planning, organizing, directing, staffing, controlling, everything that we can do as a management. Then after we can see the coordination. For coordination, we can see the characteristics, their importance. Then after we see the functional areas of management, that marketing management, human resource, financial and production. यानी कि कुछ भी चीज मैनेजमेंट करो तो some parts we can used, हम उसे used करते हैं और वो चीजें thinkful होती है, useful होती है. तो let's start the chapter. Firstly, we can going for the introduction. तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैनेजमेंट हम हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं करती है, हमारा स्केड्यूल होता है. जैसे एज स्टूडेंट यू हैव बीन अ स्केड्यूल, लाइक you've been a prepare, you've been early wake up for going for the school and ready for the school, do the breakfast, going school. After coming you can freshen up and then after you do homework, revision. Every day हमारा कहीं ना कहीं schedule होता है. Each man have a schedule. So इसी तरह किसी business, किसी firm का भी management होता है. So we can see in this chapter. So here the introduction. Management exists since ancient time. Management है वो पहले से चलता आ रहा है. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आज शुरू हुआ और हम आज सारी चीजें करें. इट इज बीन डन फॉर द अर्लियर एंशिएंट टाइम. In the primitive era of Stone Age, human beings were getting their food by hunting, fishing, etc. यानी जो पहले का टाइम था primitive, at the time of early men, तो वो लोग जो फूड था वो कैसे प्रिपेयर करते थे? इट्स बीन लाइक हंटिंग, फिशिंग, उस तरह से. क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को कहीं ना कहीं एज अ रूटीन लाइफ इंसान को एज अ रूटीन लाइफ इंसान को जैसे हम कहें कि बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत होती है. बिकॉज विदाउट दैट दे विल बी नॉट एबल टू सस्टेन देयर लाइफ. सो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जरूरत होती है. तो जो पहले का टाइम था, दैट टाइम की जो एलिमेंट थे वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और उसी तरह से अपना फूड को प्रिपेयर करते थे. सो प्लानिंग, सुपरवाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, गाइडेंस वर यूज्ड बाय देम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर वर्क. जैसे प्लानिंग है, सुपरविजन है, कोऑर्डिनेशन है, गाइडेंस, ये सारी चीजें कोई भी एक काम को, एक बिजनेस को सेटअप करो या वो शुरू हो तो भी ये सारी चीजें इट इज एसेंशियल, इट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट. जैसे किसी चीज को स्टार्ट करना है तो वी कैन डू द प्लानिंग. उसके बाद वी हैव अ बेटर सुपरविजन. सो that better supervision, better guidance, it will be go further and make earns the profit. So as a every business we start for what? We can start for the profit. We can start for the long term plannings and long term profits. So planning, supervision, coordination, guidance were used by them for the accomplishment of their work. This process means management. ये सारी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट. So no sooner did human being realize his limitation that management become essential to achieve his objective with the help of others. यानी कि ह्यूमन बींग्स जैसे कहे तो ह्यूमन बींग इज द वेरी वेरी essential thing है जो मैनेजमेंट which is had to achieve the objective. Man tries to get a maximum satisfaction using minimum resources. For this he receive a cooperation of others. कि जो इंसान होता है उसकी हमें मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा जरूरत होती है. फॉर द स्किल इंसान जिसके पास ज्यादा स्किल्स हो उसकी भी हमें ज्यादा. तो मेन ट्राइज टू मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन यूजिंग अ मिनिमम रिसोर्सेज. और उसके साथ एक कॉपरेशन, यानी एक बंदे से कुछ नहीं होगा. वी गेट टू थ्री मोर पीपल फॉर अ बेटर प्रोसेस. For when more than one person join hands for completion of work in a systematic manner, a need of planning and delegation of authority and responsibility arise. यानी कि एक इंसान काम करे और उसके साथ दो और जॉइंट हो तो जितना बेहतर काम होगा, जितना जल्दी होगा. तो दैट इज की नेसेसरी कि एक से ज्यादा दो हो तो इट इज बेटर कि हमारा काम ज्यादा अच्छा होगा. अनदर थिंग इज दैट की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी डेलीगेशन यानी कि कुछ रूल्स जो हमारी सिस्टमेटिक लाइफ में भी होते हैं. तो ऐसे ही मैनेजमेंट है, जैसे कि हमारा बिजनेस हो या फर्म हो, उसके मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स है, कुछ अथॉरिटी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जरूरी है. Whenever there is a requirement, someone should be there to provide direction. Even control become necessary to see whether people are working as per the pre-decided standard. These functions are known as management. जैसे कि किसी को हायर किया तो इट इज नेसेसरी कि वो इंसान उसके दिए गए काम को क्या वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहा है, क्या वो दे विल बी एबल टू डू देयर वर्क. तो ये सारी चीजें एक मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट है, जो एक वैल्यूएबल है. सो दिस फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट.
So in business, sole proprietorship firms and partnership firms were being managed by the owners themselves. अभी you can learn in 11th standard for the sole proprietorships. Sole proprietorships यानी क्या होता है कि sole proprietor यानी कि एक इंसान जो अपना प्रॉफिट लेके भी आए, मतलब कैपिटल लेके भी आए, उसके साथ वो प्रॉफिट एंड लॉस को भी मर्ज करे, यानी वो देखे प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो देखे, उसके बाद वो एक ही इंसान सारी चीजें जो हैंडल करे कोई भी बिजनेस में, तो इट इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटर. व्हाट वी से, इट इज नोन एज अ सोल प्रोप्राइटर. वी कैन अंडरलाइन दिस वन. Here it is a sole proprietor. And the partnership firm. Partnership firm means that कि जैसे कि एक के साथ दो, दो के साथ तीन, like ग्रुप में जो people काम करे, it is known as partnership firms. Were being managed by owner themselves. Many changes took place in the nature of business with the expansion of business activities and in due course of time finally. Like अभी बहुत सारे changes हुए हैं business की जो enterprise है उसमें. Company, okay, so in this format, it become easy to arrange big amount of capital and the service of exports, and the major benefits are also availed. यानी कि बहुत सारे चेंजेस हुए, कंपनी डेवलप हुई, जैसे हमने देखा, लाइक एक इंसान का बिजनेस है, दो तीन साथ में काम करेंगे तो देन फाइनली कंपनी को डेवलप करेंगे, और ये सारी फॉर्मेट के अंदर बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल भी अरेंज करना होता है. और ऑल्सो कि जैसे मैंने कहा, इंसान के बिना कुछ नहीं होता, तो वन एंड मोर इंसान भी जरूरी है, लाइक एक दो तीन चार जितने भी हो, बट दे हैव एक्सपर्टीज. उनके पास कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उनके पास कोई स्किल्स होनी चाहिए. इट इज अ मेजर बेनिफिट फॉर द business, but it gave rise to many problems as the size and activities of the business expand. These problems include a production of capital, problem of capital, production, sales and employees. But ये सारी चीजें भी हम expand करें, यानी सारी चीजें अरेंज करें, उसके बाद भी जो बिजनेस होता है वो एक्सपांड होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है. लाइक कई बार प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल होता है, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होता है, सेल्स एंड एम्प्लॉइज का प्रॉब्लम होता है. लाइक कभी उनके पास कई बार कैपिटल का इशू होता है, कई बार प्रोडक्शन इतना बेहतर नहीं होता, और कई बार सेल्स एंड एम्प्लॉइज का भी इशू रहता है. In such circumstances, there is a need of a trained, experienced and expert people to take a various decision and their implementation. तो इसी कंडीशन पे ना उन्हें कुछ एक trained और experienced लोग चाहिए होते हैं, because they will be get their mind and अपने experience से कुछ decision लेके किसी चीज को implementation कर पाए. Work done by this group or people is known as management. यानी कि अगर कोई इंसान सोल प्रोप्राइटर में करे या पार्टनरशिप में करे और कंपनी को डेवलप करे, in this format we can say management. Here the underline some choral words so you can able to understand. Okay, so the another topic is that meaning of management. Man is a social animal. He lives in a groups. Man is a social animal. So we can learn in the very childhood era कि इंसानों है वो एक animal, social animal है. He receives cooperation of others to achieve the objective. यानी कि एक के साथ दो का cooperation होगा, बेहतर circumstance हो गए, तो they will be achieve the objective. To know the concept of management, it become necessary to understand the meaning of management. यानी कि हमें किसी भी concept जो है हमें management का समझना है, तो उससे पहले हमें उसका एक meaning समझना होगा कि what is management. नहीं, किसी भी चीज को समझना है तो it is necessary कि हमें उसका meaning पता होना चाहिए. So it become necessary to understand the meaning of management. Many writers have explained the meaning of management from different viewpoints. बहुत सारे writers ने meaning of management अलग-अलग viewpoints में समझाया है. Let's see. As per an expert, management is the art of getting things done through other. Expert के मुताबिक management एक art है जो हम getting things done through others, हम किसी के use के लिए और किसी के साथ करते हैं. According to the Livingston, ये एक expert का नाम है, management is a function of achieving predetermined objective of a different business unit. Management एक function है to achieve a predetermined objective of business unit with the use of minimum time and cost as well as making efficient of available resources. यानी कि एक predetermined objective है जिसे हमें minimum time और cost में achieve करना होता है, और ये एक available resources है. According to the George R. Terry, management is such a process which plans and controls man, machine, material, method, money and market. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ना हमें इंसानों को, मशीन्स को, मटेरियल को, मेथड को और मनी को कंट्रोल करना होता है, उसका प्लानिंग करना होता है. It provides a leadership, coordination and directions to human efforts which helps to achieve the business objective. और ये एक ऐसा है कि जिसमें लीडरशिप होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, डायरेक्शन होता है, ह्यूमन एफर्ट्स होता है, which helps to achieve the business objective. Nature of management. Now we can see the nature of management. जैसे अभी हमने मीनिंग देखा,
एक्सपर्ट्स के हिसाब से, तो हम अभी नेचर्स देखेंगे. ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी शुड स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, यूनिवर्सल प्रोसेस. Management is a universal process. Management is required where people are working in group for the accomplishment of objective. Management एक ऐसी चीज है जो कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी यूनिवर्सल यानी कि चलती आ रही है, सारी यूनिवर्स में अप्लाई है और चलती आ रही है लूप में. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें पीपल है जो एक ग्रुप में काम करते हैं फॉर व्हाट, फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री बट आल्सो कैन अप्लाई इन द वेरियस सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स एंड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन एक्सेट्रा. यानी ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक इंडस्ट्रीज में अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो हमारी सोशल एंड रिलीजियस फील्ड्स है, जो हमारी डेली एक्टिविटीज है लाइक एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन, उसमें भी हो रहा है. जैसे कि एजुकेशन का वन एग्जांपल ले तो लाइक अभी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो जैसे कि हम वी आर हैव अ टीचर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, कुछ रूल्स है, कुछ डेलीगेशंस है. जैसे स्कूल है, इट इज नेसेसरी द स्टूडेंट फॉर गोइंग द स्कूल एंड लर्निंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड टेक द एग्जाम्स. कि अगर एग्जाम्स लेके तो वी विल नो दैट हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी डन फॉर द होल ईयर एंड फॉर द होल एकेडमिक्स. तो जैसे कि एजुकेशन में एक मैनेजमेंट चल रहा है, एक सिस्टम है जो एक पूरा मैनेजमेंट है, जैसे नर्सरी टू बी 12th स्कूल एंड आफ्टर गोइंग टू द कॉलेज, तो ये भी एक सिस्टम हुआ. मैनेजमेंट एक्टिविटीज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट. मैनेजमेंट सारी चीजों में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में, ईच फील्ड में है, अलग अलग यूनिट से हमें शो हो रहा है. इसलिए हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हो रहा है सिर्फ फॉर वन बेनिफिट, इट इज डन फॉर द होल, इट इज डन फॉर द यूनिवर्सल. तो जो हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है, जो कि बिल्कुल इजी टू लर्न है, कि ये यूनिवर्सल प्रोसेस है. Another is a goal oriented activity. Second, management is a tool and not the attainment. Every business unit is established to achieve a certain objective. ये एक टूल है, अटेनमेंट नहीं है कि इसे कोई अटेंड करना हो. यानी कि सारी बिजनेस यूनिट है वो किस लिए बैठी है, कुछ ऑब्जेक्टिव, सर्टेन ऑब्जेक्टिव अचीव करने. जैसे कोई भी हम बिजनेस यूनिट करते हैं, क्यों चलाते हैं, फॉर अचीविंग दी प्रॉफिट. तो सारी चीजें इट इज दैट फॉर अचीव समथिंग. मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकली वे. यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकली. इकोनॉमिक यानी पैसों से हमारा होता है कि हमारा एंड ऑफ द डे वी नो द हाउ द प्रॉफिट वी विल अर्न. तो यही मैनेजमेंट का और एक बिजनेस यूनिट का रोल होता है. फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकंड इज goal oriented activity, third is group activity. Management is a collectively activity carried out by two or more people. मैनेजमेंट है वो किसी एक इंसान से नहीं होता, इसके लिए दो और मोर. जैसे कहा कि हमें जितने एक्सपर्टीज लोग होंगे, जैसे स्किल्स वाले लोग होंगे, इट इज मस्ट गुड फॉर टू अस. सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन टू और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. जितने लोग ज्यादा होंगे उतना बेहतर वर्किंग होगा एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अकम्प्लिशमेंट होगा. फर्स्ट हमारा था कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, सेकंड इज गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, थर्ड इज ग्रुप एक्टिविटी, फोर्थ इज continuous process. Management is a continuous process. Once it become difficult to discontinue it. एक continuous process है, एक बार चालू हुआ तो it is difficult to be discontinued. Management is a goal oriented yet, but it does not stop after the achievement of objective. ये continuous process है. ऐसा नहीं है कि हमें हमारा गोल अचीव हो गया, हमने हमारा प्री डिटरमाइन किया, हमारा डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करके अचीव कर लिया, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा. ये स्टॉप नहीं होगा. इट इज अ लूप. ये लूप पे चलता रहेगा. इट इज ऑन गोइंग रहेगा. New objectives and targets are decided by the business unit. So the cycle of defining objective, achieving them and redefining continuously goes on. तो कहीं ना कहीं न्यू ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करे जाएंगे. तो इट इज अ साइकिल जो एक ऑब्जेक्टिव अचीविंग एंड देन रीडिफाइनिंग. यानी कि ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, उसके हम ऑब्जेक्टिव बार डिफाइन करेंगे, अचीव करें, उसके बाद वापस से कंटिन्यूसली गोज ऑन रहेगा, रीडिफाइन रहेगा, अलग अलग प्रोसेस से चलता रहेगा. तो इट इज नॉट कि स्टॉप हो जाएगा. इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस. ओके, सो फर्स्ट हमारा हुआ यूनिवर्सल, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस. अब हमारा फिफ्थ जो है वो है ह्यूमन प्रोसेस. कि ह्यूमन प्रोसेस कैसे इंपॉर्टेंस होती है मैनेजमेंट में. ह्यूमन मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी. यानी कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी से इंस्पायर्ड है, यानी इंस्पायर है. विदाउट ह्यूमन वी कैन नॉट एबल टू done for the whole universe. So human element is the most significant element in management. Most significant, most essential and most important is that other means of production are useless without man. कोई भी चीज की प्रोडक्शन, कोई भी मशीनरी, कोई भी मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल, जो चीज यूज होती है विदाउट मैन इट इज अनयूजुअल, यूजलेस. मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ये ह्यूमन बीइंग से भी होता है और ह्यूमन बीइंग से भी होता है, कराते हैं. मैन इज इन द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट. Man is the center of management.
Thus it a human process which is done and for the man. लेकिन जो एक human process है वो एक man से ही चलती. हमारा first था universal activity, group goal oriented activity, group activity, continuous process and human process. अब हमारा sixth one is decision process. Decision process is a function of management. Management has to take a decision constantly while managing business. Decision process एक function of management है और डिसीजन है जो कॉन्स्टेंटली एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें रादर सिचुएशन में लेने होते. नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन. कोई भी काम है जो कि विदाउट डिसीजन लिए या विदाउट प्रॉपर प्लानिंग करे होगा नहीं. तो एक ऐसी प्रोसेस है विदाउट रादर डिसीजन बिना हम कुछ कर नहीं सकते. आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट. आफ्टर टेकिंग डिसीजन, कोई भी डिसीजन किसी ने लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया, तो मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड, उसे प्रोसीड करना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा. तो thus decision process is a function of management. इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे. कि किसी भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया तो उसे हमें प्रोसीड भी करना होता है, इंप्लीमेंट भी करना होता है, सारी डेलीगेशंस भी बनाने होते हैं, एंड देन इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. फिर से रिपीट करते हैं पॉइंट्स. फर्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटीन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस एंड डिसीजन प्रोसेस. Our last point is science, art and profession. Like science, management has its own rules or principles. जैसे मैनेजमेंट को हम साइंस आर्ट और प्रोफेशन में कैसे डिवाइड करें, तो कि साइंस यानी कि मैनेजमेंट उसका खुद का एक रूल है, उसका खुद का एक प्रिंसिपल्स है, इसके वो एक डेलीगेशन से चलता है. यार मैनी राइटर कंसीडर मैनेजमेंट एज ए साइंस. तो बहुत सारे जो एक राइटर थे, कुछ यंग मैन थे, यूथ थे, उन्होंने उसे एक साइंस की तरह डिप्लोमाइज किया है. मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम. और जैसे हमने कहा कि मैन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट का, और सारा जो वर्क है वो उन्हीं के हिसाब से होता है. रिक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इनसाइट. यानी प्रॉपर प्रोफिशिएंसी जरूरी है किसी भी स्किल्स के लिए. इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ये दोनों चीजें जरूरी है, और इनसाइटनेस. ये तीनों चीजें, चारों चीजें इट इज मस्ट नेसेसरी कि किसी भी प्रोफेशन की स्किल्स होनी चाहिए. हमारा इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हम उसे किस तरह से हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्लेवरनेस होनी चाहिए और इनसाइटनेस होनी चाहिए. सो इट इज नोन एज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन. और इसी एक के हिसाब से हम कहेंगे कि एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक आर्ट है. जैसे रूल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से ये साइंस है, तो ये प्रोफेशनसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस और इनसाइट्स के हिसाब से एक आर्ट है. सो मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट इज हैंडेड ओवर टू ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट पीपल. यानी अभी का जो एक मॉडर्न एरा है उसमें बहुत सारे ट्रेन्ड और एक्सपर्ट पीपल के हैंड ओवर किया हुआ है. सो इन रीसेंट टाइम managers have also adopted professionalism like lawyers, doctors, chartered accountant. Thus it is clear management is a profession too. So now अभी का जो recent time है, जैसे मॉडर्न टाइम में हमने देखा कि मैनेजमेंट को किसी ट्रेन्ड और एक्सपर्ट पीपल को दिया गया है, तो इसी हिसाब से कुछ एग्जांपल्स अडॉप्ट किए, लाइक प्रोफेशंस लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. इट्स क्लियर कि ये लोग जो ऐसे हैं जो जिसके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म है, प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर स्किल्स है, और दे विल द पीपल दे हैव प्रॉपर इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस. तो अभी का जो एक एरा है जिसमें प्रोफेशन इसे लाइक प्रोफेशन से भी मैनेजमेंट डिग्निफाई हो रहा है. तो इसी तरह से साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन. सो ये था इट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. हमारा फर्स्ट पॉइंट वापस से रिकॉल करते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ह्यूमन प्रोसेस, decision process, and the science, art and profession. It's the 7 point. It is much necessary to learn these 7 proper points. So here it is a nature of management. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe the channel.